जो तारीफ और जीत से जलाल बड़ाई के लायक है, क्योंकि आसमान पर भी खुदा के फरिश्ते सुबह शाम उसके नाम की इज्जत जलाल देते हैं, उसकी प्रस्तुत करते हैं और उसके नाम की इज्जत जलाल देते हैं, क्योंकि उसी का नाम इज्जत जलाल का जीत सताइश बड़ाई के लायक है। हम प्रस्तुत में आगे बढ़ते हुए एक और गीत गाएंगे, गीत नंबर 5, सारा जलाल यीशु तेरे लिए।
और जीत साइज के लायक हमारा प्यारा यीशु है, जिसने मैं जिंदगी का उसने सिर्फ बख्शी है। वो लश्करों का खुदा है, वो कायनात का खालिक और मालिक है। वो हमारी कुव्वत, हमारी ताकत है, और वो बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह है। सारी दुनिया उसको मानती है कि यीशु कुल कायनात का बादशाह है, और वो इस जलाल पर जिस साइज बड़ाई के लायक है। अब हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे और बड़े ईमान से खुदा के पाक को पुकारेंगे, ताकि आज खुदा का पाक रूह हम एक जनाई दे। ऐ खुदा हमें छू, खुदा हमें अपने पाक रूह से भरी उसे। तेरे पाक रूह के बगैर हम कुछ भी नहीं खुदा, हम तेरे कलाम को समझ नहीं सकते, इस पर अमल नहीं कर सकते खुदा। और खुदा तुम्हें छू अपने पाक रूह से भर, ताकि इसकी पाक रूह जनाई दे। आज खुदा हम जो भी कलाम पेश हो खुदा, हम उसको समझ लें और उस पर अमल करने वाले बने। यीशु नाम से आमीन। गीत नंबर 2, बेखबर रूप का बेजबती। बेखबर रूप का
میں ضرور اس کا ہم ایسا کریں۔ میں بتاؤں گی کیا کیا بتاؤں گا کلام سچ میں۔ جس کو بھی خدا کا توفیق دے وہ آج کے کلام کے لیے دعا کرے کہ خدا کا مسئلہ خدا کا خبر ہمیں چھوئے اور برکت دے۔ آزادی دے جو دعا کرنا چاہے وہ ضرور خدا کے اچھے کلام کے لیے دعا کرے۔ آسمان و زمین کے خالق اور مالک آسمان باپ، ہم تیرے نہایت شکر گزار ہیں آج کے زندہ دن کے لیے پیارے خداوند جو تم نے ہماری زندگی میں عطا کیا کہ مل کر ہم تیرے نام کی شکر گزاری کر سکیں۔ پیارے باپ ہم سب مل کر تیرے نام کی ورشپ کی پیارے خداوند تو یہاں پر جھوم کا پیارے خداوند، اور پیارے باپ ہم یہ وقت ہے کہ تیرے کلام کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ اے پیارے باپ جو آج تیرا زندہ کلام ہماری زندگی میں بویا جائے وہ 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل لائے پیارے خداوند۔ تو اپنی بیٹی نائلہ کو جس سر سے لے کر تک چھو اور مسا کر پیارے خداوند، بلکہ میری بیٹی نے بھی یہ کلام سنا ہے پیارے باپ تو اس میں سے ہو کر بولے پیارے خداوند کہ آج کا جو زندہ کلام ہماری زندگی میں لے پیارے خداوند باعث سے برکت ہو پیارے خداوند، اور جتنی جانیں یہاں پر جھوٹ ہے پیارے خداوند اس کلام کے وسیلے سے پیارے خداوند برکت پائے، اور پیارے باپ تمام بندے بھی آئے پائے پیارے خداوند آج کا کلام زندگی میں باعث سے برکت ٹھہرے پیارے خداوند۔ پیارے باپ تمہیں دعا کو سننا قبول کر، آمین آمین۔ آج کی تلاوت مقدس مرکز اس کا پہلا باب اس کی 21 آیت سے لے کر 28 آیت تک۔ تب وہ کفر نحوم میں داخل ہوئے اور وہ فوراً سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ انہیں فقیوں کی مانند نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص تھا جس میں ناپاک روح تھی، جس نے چلا کر کہا، اے یسوع ناصری تجھے ہم سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، قدوس خدا۔ یسوع نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ تب ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور وہ سب حیران ہو کر آپس میں یہ کہتے ہوئے بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ کیا نیک تعلیم با اختیار وہ ناپاک روحوں کو بھی حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتی ہیں۔ فوراً اس کی شہرت جلیل کے سارے علاقے میں پھیل گئی۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا مجھے رشک ہو۔ میرے عزیزو، ہم نے چند دن پہلے کرسمس منایا، خدا یسوع مسیح کی ولادت کی عید، جو چرنی میں پیدا ہوا، جو ہماری خاطر اس دنیا میں آیا، کیونکہ بنی نوع انسان کے گناہوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور گناہوں کے باعث خدا باپ نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں انسان کی صورت میں بھیجا، اور وہ مقدسہ مریم کے وسیلے اس دنیا میں آیا، پاک روح کے وسیلے سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس اور کلیسیا ہمیں خدا یسوع مسیح کی ولادت ان کے چرچ میں پیش کی جانے کی نظر، اور مجوسیوں کے خدا یسوع مسیح کو سجدہ کرنا، اور ہیرودیس کے کہنے کے مطابق اس جگہ نہیں جانا بلکہ دوسرے راستے چلے جانا، یہ تمام دن ہم نے خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر ان کے بڑے ہونے تک ہم نے منائے، اور ہم کلام مقدس جو ہماری ہمیشہ رہنمائی کرتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اب اپنی اعلانیہ زندگی میں آ چکے ہیں،
وہ لوگوں میں گئے ہیں اور اپنا کام جو انہیں خدا باپ نے دیا تھا انہوں نے اس کام کو جاری و ساری کر دیا ہے، کیونکہ وہ انسان کی نجات کے لیے آئے تھے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کرنے آئے تھے کہ وہ کوئی انسانی جو بادشاہت ہے اس پر بیٹھنے آئے تھے، کسی مقام کو لے لے، بلکہ انسان کے لیے آئے تھے، انسان جو نجات پائے۔ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح سبت کے دن جو یہودی اس چیز کو بہت آج بھی اہم مانتے ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں کرتے، لیکن وہ اس سے الگ کام کرتے ہیں کہ وہ سبت کے دن ہیکل میں جاتے ہیں اور جا کر ہیکل میں اس بدرو گرفتار شخص کو جو اس وقت یہاں بدرو میں گرفتار ہوتا ہے اسے آزاد کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ جو لوگ اس وقت یہاں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ کس طرح کی تعلیم دیتا ہے۔ فقیہ جو کہ اور فریسی جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے تھے وہ ہمیشہ شریعت کی باتیں کرتے تھے کہ ہم یہ کر لیں گے تو یوں ہو جائے گا، ہم یہ کریں گے تو اس طرح ہو جائے گا، اور وہ لوگوں کو اسی طرح کی تعلیم دیتے تھے، اپنے آپ کو بڑا بناتے تھے، اپنے آپ کو اہم بناتے تھے اور لوگ انہیں کی تعلیم سنتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خدا یسوع مسیح جو اختیار والی تعلیم اور کلام کر رہے کہ خدا یسوع مسیح کے کلام کرتے کرتے لوگ شفا پاتے تھے، شفا یاب ہوتے تھے۔ پورا انجیل مقدس خدا یسوع مسیح کی اعلانیہ زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ کوڑیوں کو انہوں نے پاک صاف کیا، اندھوں کو بینائی دی، بیماروں کو شفا دی، جو پترس کی سال جو تاپ میں پڑی تھی اسے اس کا تاپ چھڑکا اور اسی ٹائم وہ ٹھیک ہوئے اور خدا ان کی خدمت کرنے لگی۔ یہ ہے خدا ان کے کام، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اسی لیے آئے تاکہ بیماروں اور کچھ لوگوں کو آزاد کرے۔ وہ کوئی ایسی کرسی یا ایسی بادشاہت نہیں کرنے آئے تھے کہ انہیں اعلیٰ کرسی دے، لیکن ان کے رسول ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ کوئی ہمیں اعلیٰ درجہ ملے گا، ہمیں کوئی ایسی وزیر مشیر بنا دیا جائے گا جس پہ ہم بیٹھیں گے، لیکن وہ خدا یسوع مسیح کو نہ پہچانے نہ سمجھے، بلکہ ہمیشہ وہ اسی اس میں رہے کہ شاید کوئی ہمیں اعلیٰ درجہ ملے گا۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے ان کی تعلیم دیکھی تو کہا کیسی با اختیار تعلیم دیتا ہے کہ یہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، یہ بولتا ہے اور لوگ بینائی پاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو نابینا تھا جو کہتے ہیں اے داؤد کے بیٹے رحم کر، اور خدا یسوع مسیح کیا کرتے ہیں اس مٹی کو اپنے تھوک سے بھونتے ہیں اور اس کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں چل بولے، اور وہ بینا ہو جاتا ہے۔ تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ اس کی تعلیم کیسی ہے، یہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے، یہ لوگوں کو مخلصی دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس طرح کی تعلیم نہیں پائی تھی، بلکہ فقیہ اور فریسیوں کی تعلیم کو جانتے تھے۔ اور ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے آج ہمیں بھی اختیار دیا ہے، کیونکہ اس طرح آیت میں ایک آیت جو ہمیں بہت زیادہ توجہ کا باعث بنتی وہ کیا ہے کہ ایک نئی تعلیم جو کیا ہے بااختیار ہے۔ تو خدا یسوع مسیح اختیار کے ساتھ اس بدرو کو کہتے ہیں کہ نکل جا، اور وہ ناپاک ہو اس کے حکم دینے سے، کیونکہ وہ اختیار سے حکم دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ بدرو جو ہے اس میں سے نکل جاتی ہے اور چلا کر کیا کہتی ہے کہ تو خدا باپ کا بیٹا ہے، تو المسیح ہے، لیکن خدا یسوع مسیح سے وہاں چھڑک دیتے ہیں۔ ایک اور آیت میں ہم اسی طرح دیکھتے ہیں اس کے 3 باب میں مرکز اس کا 3 باب میں کیا لکھا ہے، کیونکہ وہ بہت لوگوں کو شفا دیتا تھا، اس لیے کہ جتنے بیماریوں میں مبتلا تھے وہ اس پر گرے پڑتے تھے کہ اسے چھو لیں، اور ناپاک روحیں جب اسے دیکھتی تھی تو اس کے آگے گر پڑتی اور پکار کر کہتی تھی کہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور وہ انہیں بہت دھمکاتا تھا کہ مجھے مشہور نہ کرنا۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کس طرح اپنی اعلانیہ زندگی میں لوگوں کو شفا دیتے تھے، ان کو مخلصی دیتے تھے، ان کو تمام دکھوں بیماریوں سے رہائی دیتے تھے۔ میرے عزیزوں، ہماری زندگی میں دکھ، بیماریاں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ انہی کمزوریوں کی وجہ سے، کیونکہ شیطان جو ہر وقت ہماری کتاب میں رہتا ہے، شیطان جو ہمیشہ رہتا ہے کہ
तब मैं इंसान की जिंदगियों में मुख्तलिफ तरह की बीमारियां, वो हम पर यूं तो जाहिर नहीं होता, लेकिन बीमारियों की सूरत में हमारी जिंदगियों में काम करता है। उस सूरत में काम करता है जब हम कमजोर होते हैं, जब हम खुदा से दूर होते हैं, जब हम खुदा से दूरी इख्तियार कर लेते हैं, तो शैतान को मौका मिल जाता है कि हमें मुख्तलिफ सूरतों में बीमारियों, मुसीबतों, दुखों में घेरने का, और वो हमेशा चाहता है कि ये लोग खुदा उनसे दूर हो। और हम यहाँ देखते हैं कि वो जब खुदा उनके मुसीबतों लोगों को आजाद करती है, तो वो नापाक रूही जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती और पुकार कर कहती थी कि तू खुदा का बेटा है, क्योंकि वो उसे जानती थी, क्योंकि उसके पास क्या था? इख्तियार था। उसके पास इख्तियार था कि वो उन्हें डांटता और धमकाता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं अपने आप को इन लोगों के सामने मशहूर करूं, बल्कि वो एक बार इख्तियार तालीम देना चाहता था। वो जानता था कि अभी मेरा वक्त नहीं आया है, अभी मेरा वक्त नहीं है कि मैं अपने आप को जाहिर करूं। कलाम मुकद्दस, अंजील मुकद्दस, खुदा यीशु मसीह की तमाम जिंदगी के बारे में हम देखते हैं कि खुदा किस तरह अपने लोगों को आजाद करते हैं, किस तरह उनको रिहाई देते हैं। और जो आज हमने पढ़ी है उसमें हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह इख्तियार के साथ हमेशा अपने लोगों को आजाद करते हैं। आज हम चंद आयत पर गौर करेंगे कि यीशु मसीह ने जो इख्तियार दिया है वो आज मुझे और आपको भी दिया है। वो इख्तियार आज मेरी और आपकी जिंदगी में भी काम कर सकता है। इस सूरत में जब हम खुदावंद से जुड़े रहते हैं, जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, तो वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि हमेशा हमें संभाल लेता है, हमें अपनी जिंदगियों से काम करने देता है। आइए हम चंद आयत को देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है कि किस तरह हम खुदा के साथ रहेंगे। मुकद्दस मत्ती उसका 10 बाब और उसकी 1 आयत में किस तरह लिखा है कि खुदावंद ने अपने लोगों को इख्तियार दिया हुआ है। उसने अपने रसूलों को इख्तियार दिया जब उन्हें चुना और उन्हें इख्तियार के साथ भेजा, और उन्हें उसने इख्तियार दिया। आज हम देखेंगे मसीह का इख्तियार देना। मुकद्दस मत्ती उसका 10 बाब और उसकी 1 आयत में क्या लिखा है? फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उन्हें निकाले और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करे। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने इख्तियार अपने पास नहीं रखा, बल्कि अपने रसूलों को दिया। और हम देखते हैं कि रसूलों ने हम आम लोगों पे ये कलाम को खिलाया। इन 12 रसूलों ने इस सारी दुनिया को मसीहत जो बहुत बड़ा मजहब है, इस इख्तियार को अपने लोगों में मुंतकिल किया। और आज ये इख्तियार मेरे और आपके भी पास है। ये खुदा हमें इख्तियार आज मुझे और आपको भी देता है कि सूरत में जब हम ईमान से खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में जगह दें, तो क्यों ना हम ऐसी बीमारियों पे, ऐसी चीजों पे इख्तियार पा लेते हैं। क्योंकि कलाम हमें बताता है कि उन्होंने उन्हें पास बुलाकर नापाक लोगों पर इख्तियार बख्शा कि उन्हें निकाले और हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी को दूर करे। क्योंकि मेरे अजीजों, ये बीमारियां, ये कमजोरियां किस सूरत में हमारी जिंदगियों में होती है? इन नापाक लोगों की वजह से, जो इंसानी जिंदगी को हमेशा उसमें हलचल, परेशानियां, मुसीबतें उगड़ डालने की कोशिश में रहती है। और हमारी जिंदगियां क्यों खुदा से दूर होती है? इसकी वजह से, क्योंकि मेरे अजीजों, जब एक गुनाहगार इंसान तौबा करता है तो कलाम में लिखा है कि आसमान पे खुशी मनाई जाती है। खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगियां खुदा के कलाम के मुताबिक हो, उसके इख्तियार के मुताबिक हो। हम एक और आयत देखेंगे, मुकद्दस मत्ती उसका 18 बाब और उसकी 18 आयत में क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधा रहेगा,
और जो कुछ तुम जमीन पर खोलो को ये इख्तियार भी दिया है। किस सूरत में हम जमीन पर जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधा रहेगा, दुआ के वसीले। जब हम खुदा से बड़े इख्तियार से जब हम दुआ करते हैं, खुदा से जब हम बड़े ईमान के साथ उससे दुआ करते हैं और उससे मांगते हैं, तो कहते हैं कि सब आसमान पर मैं कबूल करूंगा और वो जमीन पर हो जाएगा। जरूरत है कि हमारी दुआएं क्या हो, बाइख्तियार हो, बड़े ईमान के साथ हो, दो दिला ना हो कि होगा या नहीं होगा। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने क्या दिया है, हमें इख्तियार दिया है कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो। जब उसने अपने रसूलों को ये इख्तियार दिया कि बदरूहों को निकाल सकते हैं, बीमारों को शिफा दे सकते हैं, कमजोरों को आजाद कर सकते हैं, तो उसने हमें ये इख्तियार भी दिया है कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधा रहेगा और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुला रहेगा। मेरे अजीजों, खुदा जो हमें इख्तियार दिया गया है, जरूरत है कि हम बड़े ईमान से उसका इस्तेमाल करें। जरूरत है कि हम इन तमाम बातों पर गौर करें, सिर्फ इस वक्त सुने ना और चर्च से निकल कर इन तमाम बातों को भूल जाएं कि कोई बहन या कोई भाई या कोई शख्स मुझ पर हाथ रखेगा तो मैं शिफा पा लूंगी। बल्कि खुदा यीशु मसीह ने हम सबको बेटियां और बेटे होने का हक बख्शा है और हम सबको एक तरह इख्तियार किया है। अब हम इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं, ये हमारी जाती जिंदगी पे है, क्योंकि खुदा ने हमें वो दोनों राहें बता दी हैं, अच्छाई और बुराई की, कि हम किस राह पे चलते हैं। हम खुदा की राह पे चलते हैं या शैतान के साथ चलते हैं। वो कद्दूस खुदा जो हमें प्यार करता है, उसने हम पर कोई ऐसा कानून नहीं लागू किया कि नहीं तुम करोगे, बल्कि उसने हमें आजाद मर्जी पे छोड़ा है। जरूरत है कि हम खुदा के जिंदा कलाम उसकी बातों पर ईमान रखें और इस इख्तियार का इस्तेमाल करें। आइए हम एक और आयत देखेंगे, मुकद्दस मरकज उसका 13 बाब और उसकी 34 आयत में क्या लिखा है। ये उस शख्स की तरह है जो घर छोड़कर गैर मुल्क में चला गया हो और अपने गुलामों को इख्तियार और हर एक को उसका काम दिया है हुआ हो और दरबार को हुक्म दिया हो कि वो जागता रहे। बस तुम जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुल्क के बाग लेते वक्त या सुबह को। ऐसा ना हो कि अचानक आकर वो तुम्हें सोचा पाए। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, उनके जागते रहो। मेरे अजीजों, खुदावंद एक मालिक की बात करता है, एक मालिक जो खुदा यीशु मसीह है, मेरा और आपका मालिक खुदा यीशु मसीह है, जो हमारा यीशु राजा है। वो ये मुल्क छोड़कर हमारे हाथ में दे दिया है और हमें क्या दे दिया है, इख्तियार। वो दे दिया है हमें तमाम चीजों पर इख्तियार। अब ये हमारी मर्जी है कि हम उस इख्तियार को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और जब वो किया है तो अपने गुलामों को हर एक को इसका काम दिया है और दरबार को हुक्म दिया है कि जागते रहो। हर शख्स अपनी जिंदगी का मालिक है। बेशक हम अपनी कलीसिया के ताबेदार हैं, हम उनके हर हुक्म के मानने वाले। खुदा उनका कलाम बताता है कि हर दरबार को वो काम दे दिया है, हर शख्स को उसने काम दिया है। सिर्फ फादर, सिस्टर या बिशप या पोप की जिम्मेदारी नहीं है कि मसीहत में काम करना, बल्कि मेरी और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम खुदा के कलाम को फैलाएं। और वो हमें दरबान की तरह, दरबान किस तरह होता है मेरे बीचों, कि हमेशा वो खड़ा रहता है, वो हमेशा अपने काम में एक्टिव होता है। वो अपना वो नेशा लेकर हम अक्सर देखते हैं कि वो खड़ा रहता है, क्योंकि वो हर चीज पर नजर रखता है। और खुदा आगे कहता है कि मैंने दरबान को हुक्म दिया है कि वो जागता रहे।
बस तुम जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा। शाम को या आधी रात को, मोड़ के बाद देते वक्त या सुबह को, खुदावन हमें कहता है कि जागते रहो, क्योंकि वो मालिक जो गया है वो कभी भी आ सकता है। कोई वक्त, कोई घड़ी, कोई टाइम कुछ नहीं है, बल्कि जरूरत है कि जिस तरह उसने दरबान को हम सबको हुक्म दिया है कि हमें जरूरत है जागने की, सोने की नहीं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें किस पर नजर रखनी है, खुदा के कलाम को, इसको हमने वक्त देना है। खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगियां खुदा के कलाम के मुताबिक, उसकी बातों के मुताबिक हो। ऐसा ना हो कि अचानक आकर वो तुम्हें सोता पाए, इस चीज में ईमान में सोता पाए, इख्तियार में सोता पाए, गफलत में सोता पाए। खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगियां खुदा के कलाम में जागती रहे। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ कि जागते रहो। खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगियां खुदा में जागती रहे, सो ना जाए सुस्ती और गफलत में। हम खुदा के कलाम में एक और आयत देखेंगे, मुकद्दस लूका हमें एक और इख्तियार के बारे में बताना चाहते हैं। मुकद्दस लूका उसका 10 बाब और उसकी 19 आयत में क्या लिखा है? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के रुदने और दुश्मन की सारी कुदरत पर इख्तियार दिया है, और तुम्हें किसी चीज से डर ना पहुंचेगा। खुदा यहाँ कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं, आप जानते हैं कि सांप का काटना कैसा होता है कि जब सांप काटता है तो थोड़ी देर में ही उसका जहर फैल जाता है, कितना खतरनाक होता है। तो खुदा हमें तशबीह देता है कि हमें सांपों और बिच्छुओं के दरमियान में मैंने छोड़ा है। हम अपनी जिंदगी को देखते हैं कि जहां हम थोड़े से कमजोर होते हैं, जहां हम थोड़े से सुस्त हो जाते हैं, तो हमारी जिंदगी में क्या हाल होता है, हम सबको इस चीज का पता है। हम सब अपनी जिंदगी से वाकिफ है, हमारी जिंदगी में सबकी गवाही है कि जब जब हम खुदा से दूरी इख्तियार करते हैं तो किस तरह सांप और बिच्छू और तरह तरह की मुसीबतें, परेशानियां तो हमारी जिंदगी में आ जाती हैं, जो हमें रूंधने लगती हैं, जो हमें परेशान करने लगती हैं। तो हमें याद आता है कि हमने खुदा से दूरी इख्तियार की है। हमारे ऐसे बहुत से बहन भाई हैं जो सिर्फ आते हैं अपने, मैं फिर वही बात कहूंगी, मतलब के लिए, अपने कामों के लिए, और खुदा यीशु मसीह से सिर्फ अपने काम निकालते हैं कि खुदा मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छे रिश्ते मिल जाए, अच्छे हमारे काम सुधर जाए। जब उनके तमाम काम हो जाते हैं फिर वो अपनी जिंदगी में इतने खो जाते हैं कि फिर वो भूल जाते हैं। जब वो परेशान होते हैं, सब उन्हें सांप और बिच्छू उन्हें डंक मारते हैं, जो जब उन्हें रूंधने लगते हैं तो वो फिर खुदा के कदमों में आते हैं। लेकिन हमारा खुदावन जो रहीम और मेहरबान है, जो हमेशा प्यार करता है, जिसने हमारी खातिर सलीब पर जान दी ताकि हम हमेशा की मुखलसी पाएं, क्योंकि खुदा जानता है कि इंसान हमेशा अपनी खुदगर्जी में रहता है, हमेशा अपने फायदे की बात सोचता है। लेकिन खुदा जो हमेशा मेहरबान है, रहीम है, वह